السلام علیکم، آج 5 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اہم خبر کے ساتھ کہ وزیر اعظم عمران خان کو کل کی شکایت اور آج معاملہ حل ہو گیا۔ گزشتہ روز خاتون نے وزیر اعظم کو فون پر بتایا تھا کہ ان کے مکان پر ایک ایس ایس پی کے بھائی کے ساتھ تنازع ہے۔ خاتون نے بتایا تھا کہ ایس ایس پی کا بھائی رقم نہیں دے رہا۔ سی سی پی او لاہور نے ایس ایس پی کے بھائی سے خاتون کو اس کے پیسے واپس دلوا دیے ہیں۔ فوراً ود ان آورز جو ہے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں گھر پہ آئے تھے ایس پی ڈی ایس پی اور انہوں نے جو ہے ایس ایچ او وغیرہ اور سوسائٹی کے بھی ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے بھی کانٹیکٹ وغیرہ کیے تھے اور آج صبح جو ہے سی سی پی او صاحب نے مجھے میری رقم جو ہے وہ دلوائی ہے۔ ایشوز ریزالو ہو گئے۔ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو اپیل وغیرہ کی ہوئی تھی اسٹیج جب اس کا کینسل ہوا تو وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے اور جو پیسے وغیرہ جو رہتے تھے اس کے لیے کوئی اپیل کی تھی تو وہ بھی واپس لے لیے اور پیسے بھی دے دیے۔ میں سیٹسفائی ہوں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عتیق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عتیق بتائیے گا۔ جی بالکل، سی سی پی او لاہور نے جو غلام محمود ڈوگر نے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی بیوہ خاتون عائشہ کو اس کی ڈوبی رقم جو ہے واپس دلوا دی ہے اور سی سی پی او لاہور محمود ڈوگر نے جو ہے وہ آج اپنے دفتر میں واجبات کی مد میں 4,72,000 روپے کی جو قابضین سے لے کر رقم جو ہے وہ عائشہ بی بی کے حوالے کی تھی۔ عائشہ بی بی نے گزشتہ روز جو ہے وہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اس حوالے سے فون کال کی تھی اور لاہور پولیس نے اور ڈی ایچ اے رہبر میں بیوہ خاتون کا گھر پہلے ہی کال کر کروا دیا تھا، تاہم عمران اصغر نامی کرایہ دار جو بیوہ خاتون کے باقیات واجب ادا نہیں کر رہا تھا اور اس سے جو ہے وہ واپس رقم جو ہے وہ دلوا دی ہے اور اس حوالے سے جو بیوہ خاتون تھی انہوں نے جو ہے کسی کو لاہور کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عتیق ملک۔ شکارپور میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن 5ویں روز بھی شروع نہ ہو سکا۔ پولیس کے بلند و باند دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے امجد ارائیں سے۔ جی امجد بتائیے گا۔ شکارپور کے کچے کے علاقے میں اگر آپریشن کی بات کریں تو مسلسل آپریشن بند ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب آپریشن شروع کیا جائے گا تو ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ آپریشن شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم بات کریں گے شکارپور کے سیاسی، سماجی اور صحافی برادری سے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ سرکار کا موڈ ہی نہیں آپریشن کا، اور ان کا موڈ تو یہ ہے کہ کرمنل پلیں اور کرائم ہوتا رہے تاکہ وہ اپنے لوگوں پر اس طریقے سے حکمرانی کو مزید ٹول دے سکیں۔ اور اس وقت جو کچے میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شکارپور پولیس کے جوانوں کو بالکل گڑی تیغوں کے شہری علاقے میں وہاں پہ بٹھایا گیا ہے اور 10 فرضی جو ہے مورچے بنائے گئے ہیں اسی شہری علاقے میں۔ کچے کے علاقے میں ایک بھی پولیس کا جوان نہیں ان کا موڈ ہے آگے جانے کا، آپریشن کرنے کا۔ اب تک 3 پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس انتظار میں ہیں کہ وہ اندر آئیں اور ان کو للکار رہے ہیں مسلسل کہ ان کو اگر پولیس میں ہمت ہے تو اندر آئے۔ اس لیے یہ بے ہمت پولیس ہو چکی ہے۔ اس پولیس کو بے ہمت بنایا گیا ہے۔ اس بہادر پولیس کو بے ہمت بنانے میں سندھ سرکار کا ہاتھ ہے۔ یہ سر ابھی تک تو نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ کچے کے علاقے میں جو آپریشن پولیس کی جانب سے کیا جا رہا تھا، پولیس کمانڈر اور پولیس کے لیڈ کرنے والے افسران کے تبادلے کے بعد جو ہے ابھی تک وہ آپریشن بند ہے، کیونکہ وہاں پر سیاسی ڈاکو ہیں، جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی ڈاکو ہیں۔ اس لیے نہیں لگ رہا کہ وہاں پر آپریشن کیا جائے گا اور آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ ایس ایس پی شکارپور تو بار بار یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم فیز وائز جو آپریشن کریں گے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جو کمانڈر تبدیل ہوئے یہاں کے آپریشن کے، ان کے بعد جو ایک نہ ڈاکوؤں نے گولی چلائی ہے اور نہ ہی جو پولیس والوں کی نے گولی چلائی، اس لیے آپریشن بند ہے اور امید یہی نظر آ رہی ہے اور یہی دکھنے میں آ رہا ہے کہ آپریشن مشکل ہو سکے آگے۔ ایس ایس پی نیا جو تنویر تنیو اور مدر نواز شیخ ڈی آئی جی لارکانہ آئے ہیں، یہ صرف ڈرامہ ہو رہے ہیں۔ وہاں جو میڈیا کے لوگ گئے ہیں تو کل پکے پہ جو ہیں وہ 2 پولیس پکڑے ہیں جہاں سے 10 سے 15 پولیس ارکار ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن وہ کچے کے جو ایریا ہے وہ بہت خطرناک ایریا ہے۔ میں یہ کہنے کا حق بجانب ہوں کہ پاکستان سے سب سے بڑا جو خطرناک ایریا ہے وہ گڑی تیغو ہے۔ وہاں جب تک رینجرز اور فوج سے کام نہیں لیا جائے گا، یہاں کے ایس ایس پی کے بس کی بات نہیں ہے۔
जी बिल्कुल, शिकारपुर के सियासी, समाजी और सहाफी बरादरी की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन बंद किया गया है, ये सियासत की भेड़ चढ़ गया है। वजीर आला सिंध जो यहाँ पर पहुंचे थे शिकारपुर में, उन्होंने जाने के बाद आईजी सिंध को हुक्म दिया था कि एसएसपी और डीआईजी को हटाया जाए, जिसके बाद उसको हटा दिया था और उसके फौरन बाद ही ऑपरेशन बंद कर दिया था। अब मुसलसल ऑपरेशन बंद है। पुलिस जो है वो कच्चे से निकलकर बाहर बैठ चुकी है और आम शहरियों का ये मुतालबा है कि इस कच्चे को जो 30 सालों से लोगो एरिया बनाया हुआ है डाकू ने, उसको आजाद किया जाए और उसके ऑपरेशन में उसमें आर्मी और रेंजर के सिवा ये मुमकिन नहीं है। तो आर्मी और रेंजर्स सिंध हुकूमत मदद लेगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो ऑपरेशन सियासी भेड़ चढ़ गया है। और राजनपुर से आपको खबर दें कि राजनपुर में 2 पुलिस एहलकारों को लापता हुए 5 रोज हो चुके हैं, लेकिन अब तक एहलकारों को बाजियाब न कराया जा सका। पुलिस ने कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पुलिस की इजाफी नफरी और एपीसी इलाके में पहुंचाई जा चुकी है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इसहाक गबूल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी इसहाक, बताइएगा। जी ऐसा है कि ये तहसील रुझान का दरियाई कच्चे का इलाका है सोनमियानी, जहां डाकुओं ने लठानी गैंग है और दूसरे जो गैंग हैं उन्होंने कच्चे के इलाके में वारदातों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू कर रखा है। 5 रोज कबल 2 पुलिस एहलकार लापता हुए, जिस पर पुलिस तर्जमान की जानिब से यही कहा गया कि वो लापता हो गए, जबकि लठानी गैंग ने दावा किया था कि ये 2 पुलिस एहलकार अगवा कर लिए गए हैं। इस वक्त आरपीओ फैसल राना जो है उन्होंने डीपीओ राजनपुर के हमरा इलाके का दौरा किया। आरपीओ के मुताबिक यहाँ एपीसी बख्तरबंद गाड़ी और दूसरी जो कन्वेंस हैं गाड़ियां हैं वो पहुंचा दी गई हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और इलिट फोर्स जो है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है और इंशाल्लाह हमें भरपूर यकीन है कि ये ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसहाक गबूल। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन 6ठे रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्सेज की जानिब से डाकुओं के ठिकानों पर छापों का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं अशरफ बुजदार से। जी अशरफ बुजदार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से हुक्म के बाद लादी गैंग के ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने लादी गैंग का तबादला किया। ताहम वो रात की तारीकी में फरार हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी पनाहगाहों को तबाह कर दिया। ताहम लादी गैंग का कोस फौजों के तंग और तारीक इलाकों में रूपोश हो गए और पिछले 6 रोज से सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी तलाश में है। इधर आरपीओ डेरा गाजी खान ने यह दावा किया है कि लादी गैंग किया है दहशतगर्द आइंदा 72 घंटों में गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। इस डेडलाइन को 24 घंटे गुजर गए हैं और अभी 48 घंटे बाकी हैं। इस तरह तवक्को की जा रही है कि आइंदा 48 घंटों में उनकी गिरफ्तारी मुतवक्किल है और दहशतगर्दों को पैसरे किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ। खबर दें कि कनकोट में खसरा पर कंट्रोल पाने के लिए महकमा सेहत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मजीद 3 बच्चे जाबहक हो गए हैं। खसरा से जाबहक बच्चों की तादाद 34 हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी, बताइएगा। जी देखें, खतरा की विवाह जो है कि वबाई शक्ल मर्ज की तरह बच्चों को निगलने लगा है। कि ये आज जो वाक़या पेश आया है कि 3 बच्चे जो थे जो आपको बताएं कि कनकोट में खसरा पर कंट्रोल पाने के लिए महकमा सेहत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। तफसीलात देते हुजूर बख्श मंगी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे, जहां खानेवाल रोड पर कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर 50 घंटे गुजरने के बावजूद काबू न पाया जा सका। एयर फायर कंट्रोल के जरिए हेलीकॉप्टर तलब कर लिया गया है। फायर पर इस वक्त भी काबू नहीं पाया जा सका है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में खानेवाल रोड पर वाक़ कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर 50 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक काबू नहीं पाया जा सका। एयर फायर कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर तलब कर लिया गया है। और अब बात करेंगे महंगाई की। तो फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। महंगाई के सदाए आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बात करेंगे आज उसके नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम।
جی فیصل آباد میں بھی سبزیاں اور پھل جو ہے وہ شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں. آئے روز اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے. اس وقت فیصل آباد کے بازاروں میں سبزیاں جو ہیں وہ اروی 115 روپے، ٹینڈے 135 روپے، مٹر 190 روپے، جبکہ ادرک جو ہے وہ 320 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو پھل جو ہے وہ جن میں سیب 170 روپے، کیلا 175 روپے، آڑو 160 روپے اور آم جو ہے وہ 150 سے 220 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. سبزیاں جو ہے وہ جہاں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہاں پھلوں کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے سبزی خریدنا مشکل ہے، پھل خریدنا تو ان کے لیے جو ہے وہ بالکل ناممکن دکھائی دے رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ جو منافع خور ہیں ان کو لگام ڈالے، ان کے خلاف کارروائیاں کرے تاکہ ان کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں وہ کنٹرول میں آ سکیں. جی قصور میں مہنگائی نے غریب آدمی کی چیخیں نکال دی ہیں. آٹا، چینی، گھی، سبزیاں اور مرغی سب کے سب مہنگے ہیں. مزید جانتے ہیں محمد عمران فیضی سے. غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں، ضرورت اشیاء، آٹا، گھی، چینی، دالیں، اس کی قیمتیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ رہی سہی کسر مرغی کے گوشت نے نکال دی ہے. گزشتہ 2-3 ماہ سے مرغی کے گوشت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر عوامی رائے جانتے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. یہ ہم تو بہت مجبور ہیں، گوشت لینے ہیں، گوشت بہت مہنگا ہے، پریشان ہیں. گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، گوشت کھلائیں، دال کھلائیں، ہر چیز مہنگی، گوشت بھی مہنگا، گھی بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی. بہت پریشان ہے. اپنے حکمران کو چاہیے یہ چیزیں کم کریں. ایسا کہ آپ نے جانا کہ شہریوں کے تاثرات سنو، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کام کو چاہیے کہ وہ مرغی، دالیں، سبزیاں، گھی، سب کی چیزیں کو فوری طور پر کنٹرول کریں تاکہ شہریوں کو، غریب آدمی کو ریلیف مل سکے. خانیوال میں بھی جہاں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، وہیں پر شہری مہنگے داموں گوشت خریدنے پر مجبور ہیں. مزید بتا رہے ہیں محمد اشرف گادی. خانیوال میں مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور گراں فروشوں اور منافع خوروں نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے اور شہریوں سے منمانے ریٹ بھی وصول کیے جا رہے ہیں. اگر میں بات کروں مرغی کے گوشت کی تو 400 روپے فی کلو بڑے جانور کا گوشت 600 روپے فی کلو اور چھوٹے جانور کا گوشت 1200 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور گوشت بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. اہم شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گوشت کی حکومت کے مقررہ کردہ قیمتوں کے مطابق فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور زائد قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف پرائز کنٹرول ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف میسر آ سکے. دنیا پور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے کا ہو گیا، جبکہ روٹی 10 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. مہنگے نرخ پر ملنے والا آٹا بھی غیر معیاری ہے. شہری دہائی دینے لگے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے چودھری زاہد محمود سے. بالکل مہنگائی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. سبزیوں سے لے کر گوشت تک ہر چیز کے نرخ جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 میں فروخت کیا جا رہا ہے. جو چکی مالکان ہے وہ 60 روپے کلو گرام آٹا فروخت کر رہے ہیں، جو آٹا بھی ناقص ہے. اسی طرح نان بائی جو ہے روٹی 10 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. مہنگائی کے پیچھے جو لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ دہاڑی دار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ہم غریب آدمی ہیں، تازہ دہاڑی والے دکانوں پہ جاتے ہیں، نہ اسٹوروں پہ گھی ملتا ہے، نہ چینی ملتی ہے، نہ پتی ملتی ہے. وہاں لائنوں میں کھڑنا پڑتا ہے. کل لاؤ تو کہتے ہیں پرسوں آؤ. کیا کریں ہم؟ کہاں جائیں؟ روٹی کی بجائے ہم ڈبل روٹیاں کھائیں، کدھر جائیں ہم؟ بالکل جی، آپ نے جو ہے جہریہ طبقے کی پاس ہونے کی حکومت ہے وقت سخت نعرہ نظر آتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ہماری زندگی جو ہے عذاب بنا دی ہے. حیدرآباد میں ایک طرف تو سورج آگ برسا رہا ہے تو دوسری جانب ہیسکو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. شدید گرمی میں شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے اور مختلف علاقوں میں خراب ٹرانسفارمر بھی ہفتوں سے ٹھیک نہیں کیے جا رہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے وسیم خان سے. بعد میں ایک طرف تو سورج آگ برسا رہا ہے اور دوسری طرف اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی حیدرآباد میں جو درجہ حرارت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی زیادہ گرمی میں ہیسکو نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. شہر بھر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں جہاں ٹرانسفارمر خراب ہو رہے ہیں وہاں ہفتوں تک ٹرانسفارمر نہیں بنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے.
रायवंड और गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, रायवंड और मुल्हिका इलाकों में इस वक्त बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो लेस्को हुकाम ने गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसका अजाब शहरियों पे नाजिल कर दिया है। हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह चूंकि लॉकडाउन के अयाम भी चल रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन कारोबार होता है और कारोबार के अयाम में भी यहाँ पे बिजली की बंदिश की वजह से ताजिर हजरात को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लेस्को हुकाम को अवाम पे तरस नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बच्चों और बूढ़ों को भी गर्मी की शिद्दत की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी हल्कों ने मुतालबा किया है कि रायवंड में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सख्ती से नोटिस लिया जाए और वजीर आजम पाकिस्तान रायवंड और समेत दीगर मुल्का इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मे के अहकाम जारी करें। जहानिया का रुख करेंगे। जहानिया में नवाही इलाके में ट्रांसफार्मर खराब हुए 20 रोज गुजर गए हैं। अहले इलाका शदीद गर्मी में मुश्किलात का शिकार है। सारिफीन ने मैपको सेकंड सब डिवीजन जहानिया के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरियों का कहना है कि बार बार राबता करने के बावजूद मैपको की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अहले इलाका पानी से महरूम है। सख्त गर्मी की वजह से बच्चे और बड़े सभी मुश्किलात का शिकार हैं। आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। लोगों को उसकी वजह से कुछ मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन फैसलों का, उन बरवक्त फैसलों का असर ये हुआ कि हमारी वबा का फैलाव जो है, जो बहुत एक खतरनाक सतह तक पहुंचा हुआ था, वो उसके बाद जो है वो सिर्फ थमा नहीं बल्कि उसके बाद हमें मुसलसल उसके अंदर बतदरीज कमी नजर आ रही है। अभी भी वबा खत्म नहीं हुई, वबा अभी भी है और एक ऊंची सतह के ऊपर है, लेकिन जहां तक पहुंच गए थे वहां से हम काफी नीचे आ सके। मैं आपको अगर अदादोशुमार के लिहाज से बताऊं तो हमारी जो मस्बत शरह थी वो 10 से 11% के दरमियान पहुंच गई थी और पिछला हफ्ता जो है उसमें वो 4.5% के करीब रही और कल जो है वो 4% से जरा सी ज्यादा थी। सिंध के अंदर अभी भी वबा का जो फैलाव है वो जरा ज्यादा लेवल के ऊपर है, इसलिए वहां पर ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो पहली बात तो ये कि जो बरवक्त फैसले किए गए अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अच्छा असर हुआ और हमें बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन एहतियात की जरूरत खत्म नहीं हुई, एहतियात की जरूरत अभी भी हमारे पास मौजूद है। अब यहां से आगे बात यह आती है कि इससे निकलना कैसे है। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई और जाहिर एक बड़ा मजबूत निजाम बना हुआ है। एनसीओसी इसको कोऑर्डिनेट करती है, तमाम सूबे साथ बैठते हैं और हमारी दुनिया के लिहाज से भी और खित्ते के अंदर भी निस्बतन अल्लाह ताला ने करम किया है और जिस किस्म के हमने अपने खित्ते के अंदर, अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर सूरत हाल देखी, हमें वैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बंदिशें हैं, इससे लोगों के रोजगार पर भी असर होता है और जाहिर है लोगों की सेहत के लिए भी इससे मुश्किलात पैदा होती हैं, लोग अस्पताल में भी जाते हैं। तो यहां से निकलने का तरीका जो है वो ये बंदिशें नहीं है, ये तो एक दिफाई तरीकेकार है। निकलने का तरीका इससे वैक्सीनेशन है, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने हमें बताया और वो ममालिक जहां पे बहुत ज्यादा इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी है वहां पर हम इसके मस्बत असरात भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर कोरोना की शरह नीचे आ गई है और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर ये करना है। हमारे जो इस वक्त की आदादो शुमार हैं उसमें कुछ 70 लाख से ज्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन हमने पहुंचना कहां है? हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन खास तौर पे हमारा हदफ ये है कि ये जून और जुलाई के महीने में बकरा ईद आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए और उस सतह के ऊपर हम पहुंच जाए जिसके ऊपर हमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़े, जिस तरीके से हमें ईद उल फितर के ऊपर करना पड़ा था। इसके लिए जाहिर है वफाकी हुकूमत ने करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का भी इंतजाम कर लिया है और करोड़ों मजीद वैक्सीन अब आने वाली हैं पाकिस्तान में। सिर्फ
जून के महीने में ही 1 महीने में हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आएंगी। इसी तरीके से हमारे पास जुलाई के महीने में मजीद 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आएंगी। तो वैक्सीन की दस्तयाबी अब इंश्योर कर दी गई है। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर इसके ऊपर अभी भी बड़ी स्ट्रगल चल रही है, खासतौर पर वो ममालिक जो बहुत ज्यादा कोई अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब इंतजामात हो गए हैं। सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में एनसीओसी ने काम किया है और सूबों ने अपनी जो कैपेसिटी है जिसके जरिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वो मराकज जो हैं जहां पे वो लगाए जा रहे हैं वैक्सीन, उसमें भी इजाफा किया है, खातिर खा इजाफा किया है। और यही वजह है कि वो वैक्सीनेशन जो हमारी शुरू हुई थी जिसमें चंद 100 वैक्सीन दिन में लगाई जाती थी, परसों अल्हम्दुलिल्लाह 3,83,000 वैक्सीन हमने लगाई। लेकिन हम इसको, इस तादाद को इससे 2 गुना से भी ज्यादा ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज की एनसीसी के अंदर सूबों से ये दरखास्त की गई है कि जो उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है वो हमें आज भी पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि कुछ शहरों के कुछ सेंटर्स के अंदर हमें ये शिकायत आ रही है कि लोगों को ज्यादा देर इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसलिए और मजीद तेजी से सूबे जो हैं और जो वफाक के ज़ेरे असर जो इलाके आते हैं, जो वफाकी टेरिटरीज हैं, उसके अंदर हमने ये कैपेसिटी बढ़ानी है। लेकिन अब हम जब अगली स्टेज पे जिस पे जा रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, तो अभी तक तो ये जो अप्रोच हम यूज कर रहे थे इसको कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी तमाम हुकूमती इदारों की, चाहे वो वफाकी हो, सूबाई हो या कोई भी इदारे हों, उनके मिलजुल के ये काम हो रहा था। अब हम यहां से जो अगली स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी पूरी कौम मिलकर जिसने काम करना है। जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर के ऊपर हमने मिनहसुल कौम काम किया, इसी तरीके से वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है वो भी हम सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं, वैक्सीन खरीदने की, ये मैं पहले भी कई दफा बोल चुका हूं, वफाक ये जिम्मेदारी उठा चुका है। वो पाकिस्तानी जो वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर एलिजिबल है, यानी 18 साल और उससे ऊपर की एज के तमाम लोग जो हैं, और उसके साथ ही वो वैक्सीन लगाने को तैयार है, मुफ्त में वफाक उनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, मुहैया करेगी, अभी तक करती रही है और आगे भी इंशाल्लाह ताला जिसको भी जरूरत होगी वो करेगी। लेकिन इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम एक बड़ी कैंपेन शुरू करने, एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। सबसे पहले तो कल हमारा एनसीओसी के अंदर इजलास होगा और हमने वहां पे मीडिया के मालिकान और एंकर्स को बुलाया है और हम उनकी सबसे पहले इसके अंदर मदद हासिल करेंगे। जिस तरीके से मीडिया ने इनके इंतहाई मौसर किरदार अदा किया लोगों तक आगाही पहुंचाने का कि किस तरीके से इस वबा से बचना जरूरी है, एसओपीज पे कैसे अमल करना है, ये मास्क पहनने की जरूरत क्या है, तो मीडिया ने एक बड़ा मौसर किरदार अदा किया। इसी तरीके से हम एक बड़ी कैंपेन के जरिए चाहते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और उसकी आगाही के लिए जो है वो भी एक मीडिया कैंपेन हो। उसके बाद परसों इंशाल्लाह ताला हम अपने पास बुलाएंगे पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बिजनेस के इदारे हैं, जिसमें तमाम बड़े बड़े शहरों के चेंबर्स हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर है, उनको हम दावत दे रहे हैं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स का जो मल्टीनेशनल्स है उनका जो चेंबर है, ये सबको हम बुला के और हम इनको अपने इस काम में शराकतदार बनाना चाहते हैं। हम उनको बताएंगे एग्जैक्टली हम उनसे किस तरीके से मदद हासिल करना चाहते हैं। हमें उनके पैसे की जरूरत नहीं है, हमें वैक्सीन भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनके जरिए बराह रास्त तमाम इन इदारों में काम करने वाले बशमूल पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं इस वक्त, हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, रेलवेज बहुत बड़ा है, टीचर्स की तो पहले से शुरू हो चुका है, ये तो 2 हफ्ते पहले हो गया था। 20 लाख टीचर्स हैं पाकिस्तान में और हमारी उम्मीद ये है और आज भी ये सूबों से कहा गया है कि 10 जून तक तमाम टीचर्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाए। इसी तरीके से रेलवेज, आपके ओजीडीसी, पीपीएल और जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बाकी जितने भी इदारे हैं, नेशनल बैंक है, जितने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, इनके अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के जितने इदारे हैं, उन तमाम उनकी फैमिलीज, उनके एम्प्लॉयज, उनकी फैमिलीज तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए। और फिर हम इनकी मदद भी मांगेंगे कि एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए मोबाइल टीम्स जो हमने बनानी है या इनके अपने अस्पताल जो हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पूरी चीज के लिए उनके साथ। उसके बाद एक बहुत पाकिस्तान में एक ऐसा तबका जिसकी लोग बात सुनते हैं, जो असर रखते हैं, लोगों की
सोच के ऊपर असर रखते हैं हमारे उलमा जो हैं। इसी हफ्ते के अंदर सदर साहब से हमने दरख्वास्त की है, सदर पाकिस्तान खुद ये मीटिंग करेंगे, उलमा को बुलाएंगे और उनके जरिए भी ये पैगाम पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी कि हर पाकिस्तानी तक ये पैगाम पहुंचे कि अपनी सेहत की हिफाजत करना आपके दीन के अहकामात में से, ये जो मेरा बदन है ये अल्लाह ताला की अमानत है मेरे पास, और इसके लिए अच्छे फैसले करना और ऐसे फैसले करना जिससे मेरी अपनी सेहत की हिफाजत हो सके, ये एक अल्लाह ताला की अमानत की हम हिफाजत कर रहे हैं। तो उलमा के साथ भी इंगेज किया जाएगा। हमारे बार काउंसिल जो है, लॉयर तबका पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, हमारी जो सहाफी तंजीमें जो हैं, जो प्रेस के हमारे लोग हैं, इन सब के साथ जो है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ तबकात जो हैं उनके साथ हम मिलकर इसको पूरी मिनहसुल कौम एक अप्रोच करेंगे। जिस तरीके से आपने सबने देखा, दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान इस वबा से बचने में निस्बतन बहुत बेहतर रहा है और साथ साथ रोजगार को चलाना और मईशत को भी साथ साथ बढ़ते हुए देखा। आपने देखा कि कितनी अच्छी हमें ग्रोथ भी नजर आई, और ये सब मुमकिन ही इसलिए हो सकी कि मिनहसल कौम हमने अच्छे फैसले किए, हिफाजती तदाबीर की। इसी तरीके से हम चाहते हैं ये वैक्सीनेशन का भी जो आगे काम है, इसमें भी पाकिस्तान ऐसे काम करे कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान की मिसाल दें कि वो ममालिक जो बहुत ज्यादा अमीर मुल्क नहीं है वहां पर भी किस तरीके से मौसर तरीके से काम हो सकता है। और इसके अंदर आखिर में बेहतरी आपकी मेरी एक पूरे माशरे की है। हम चाहते हैं कि ये जो बंदिशें अभी तक कायम हैं, इसको बतदरीज हम कम कर रहे हैं लेकिन अभी भी कायम है, इनको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके, कारोबार चले, किसी की रोजगार जो है उस पर मनफी असर ना हो, और एक आम नॉर्मल जो जिंदगी है हम उसकी तरफ रवा दवा हो। तो आज की एनसीसी ने ये पूरी हमारी जो मजबूत स्ट्रेटजी है उसकी मंजूरी दी है, और लेकिन एनसीसी के फैसले से नहीं, ये जो हिकमत अमली है ये कामयाब उस वक्त होगी जब आप सब यानी हर एक पाकिस्तानी इस हिकमत अमली की न सिर्फ मंजूरी देगा बल्कि इसके अंदर अपना हिस्सा भी डालेगा, इसका हिस्सेदार भी डालेगा, खुद अपने लिए वैक्सीन लगवाएगा, अपने रिश्तेदारों को कायल करेगा, अपने दोस्तों को कायल करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम मजीद बेहतरी की तरफ इसके बाद जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर इस वक्त मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि रमजान में मुश्किल फैसले करना पड़े, मुश्किल फैसलों के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है, बंदिशों से लोगों के रोजगार पर असर होता है, पड़ोसी मुल्क के मुकाबले में पाकिस्तान में कम नुकसान हुआ है। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज। इस वक्त आपको बताएं कि सेनेट इजलास जारी है, वफाकी वजीर मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बल्कि सोलर के ऊपर अभी जिस तरह एक एक करके बात की जा रही थी कि आपने स्कूल सोलर पे कर दिया, आपने नेशनल असेंबली की बिल्डिंग सोलर पे कर दी, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने आगाज किया था मसाजिद से, फिर उसके बाद हम स्कूलों पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे, उस पे भी सोलर पे गए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये नहीं। सोल्यूशन ये इसलिए नहीं कि 20 और 30 साल के लिए आपको बांध दिया गया है उन एग्रीमेंट्स में। 30 साल तक आप उन एग्रीमेंट से निकल नहीं सकते। अगर आप निकलोगे तो आपके ऊपर जिस तरह आपके दौर में रेकोडेक का हुआ, आपके दौर में कारके का हुआ, इसी तरह आपके ऊपर मजीद पेनल्टीज लगेगी। लिहाजा एक है आईपीपीएस की इंक्वायरी करके गलतियों का ताउन करके उसको ठीक करना, दूसरा है कि आपने जो स्टेप्स आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हो, आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा रहे हो, आप बलूचिस्तान के अंदर आप सोलराइजेशन की बात हो रही है कि तमाम जो आपके ट्यूबवेल्स वगैरह है उनको आप सोलराइज कर दें, ये स्टेप्स ले रहे हो। लेकिन डैम जब बनाएंगे और डैमों के ऊपर काम करेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सर्कुलर डेट की बात हुई सर, बात बिल्कुल ठीक की थी सेनेटर साहब ने कि सर्कुलर डेट जो है वो आपका बढ़ता गया। सर ये बात इस तरह जब की जाती है कि बढ़ता गया, बिल्कुल आपको बताएं कि इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है, वफाकी वजीर मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया और गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मंजर आम पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी हुई है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है और गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं।
खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आज के साथ रहिए।